Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the third part of capital budgeting, which is techniques of evaluation. So let us start with the video. First of all, we know that capital budgeting decision starts with the process of estimation and determination of the cash flows, which is the cost and benefit related to different projects that we are investing in. So in the previous video, we already discussed the calculation or the estimation of cash flows. Okay. Now, the capital budgeting involves three steps. First step, we have done the estimation of the cash flows. Second one is the estimation of required rate of return. Estimation of required rate of return. And the third step is the evaluation of the proposals based on that rate of return. ठीक है. अब the evaluation we are studying here in this video and the estimation we will be studying in further videos and future videos. So stay connected to my channel so that you can learn the estimation of required rate of return. So talking about the techniques of evaluation, there are basically two types of techniques. Okay, two types of techniques are there. First one is the traditional techniques. Traditional techniques are also known as the non-discounting techniques. And other one are the time adjusted or modern techniques. Okay, so these modern techniques are discounted techniques and the traditional one are non-discounted. That means we do not take TVM in consideration. Time value is not there in these techniques and we consider time value of money in the modern techniques. So traditionally, there are two techniques. One is the payback period and other one is the accounting rate of return. Which is ARR. Okay. And in the modern techniques, we will be studying three techniques, namely the net present value. Second one is the profitability index. And the third one is the internal rate of return. Okay. So let us study these techniques one by one. First, we will start with the traditional techniques. So, traditional technique में सबसे पहले we have payback period. So, the payback period is a period which refers to the period within which the original cost of the project is recovered. हम किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट ये सोच के करते हैं ना कि हम जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमें उससे रिटर्न मिले ताकि जो ओरिजिनल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो कवर हो जाए किसी तरह से. So that is payback period only. Now, this payback period is a length of time actually which is required to cover the initial investment. Okay, we have to cover the initial investment. Okay, so there are two techniques by which we can compute the payback period. It is also called PBP. ठीक है. सो पेबैक पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं. पहला टेक्निक है कि जब एनुअल इनफ्लोज इक्वल होते हैं. ओके, जो हमने कैश फ्लोज निकाले हैं दैट आर इक्वल. सो उस केस में वी विल डिवाइड द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बाय एनुअल कैश फ्लोज. नेक्स्ट वन इज when the annual cash flows are not equal. ओके, सो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव cash flows, and after that cumulative cash flows we will apply a formula
which is payback period is equal to the completed years plus amount yet to be recovered divided by the cash flow of next year. जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे यू विल बी गुड एट दिस। ओके, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब यहाँ पे हम डिसीजन कैसे लेते हैं। ओके, सो दिस इज द डिसीजन रूल कि डिसीजन कैसे लेना है। जितना शॉर्टर द लेंथ ऑफ द पे बैक पीरियड होगा उतना ही बेटर प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो मुझे कम टाइम में इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर करने दे रहा है। ओके, सो जितना शॉर्टर टाइम पीरियड होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा प्रोजेक्ट जो होगा वो बेटर होगा in terms of safety also and in terms of liquidity also. Next is the accounting rate of return. Okay, accounting rate of return refers to the ratio of annual profits after taxes to the average investment. Okay, how much return are we expecting from investing in a project? That is accounting rate of return. But यहाँ पे भी TVM नहीं अप्लाई होता क्योंकि ये भी एक ट्रेडिशनल टेक्निक है। ओके, यहाँ पे क्योंकि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की बात करते हैं, एनुअल प्रॉफिट्स की बात करते हैं, और हमें पता है, हमने वीडियो में पढ़ा था अपनी, कि एनुअल जो प्रॉफिट्स होते हैं और जो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द कैश फ्लोज। ओके, सो द एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की हाफ होती है। एंड अकॉर्डिंग accounting rate of return is also called the average rate of return. This is not according, this is accounting. Okay, ARR को हम average rate of return भी कहते हैं। Now it is assumed that the asset is depreciated as per the straight line method. यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो भी asset हमारा depreciate हो रहा है that is based on the straight line method, नॉट ऑन WDV। यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू मेथड का यूज हम नहीं करेंगे। एंड जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो परसेंटेज फॉर्म में होगा। ठीक है, जितना ज्यादा अकाउंटिंग रिटर्न होगा उतनी ही ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब वी विल दैट इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट, दैट प्रोजेक्ट इज वेरी गुड। ओके, तो हम उस प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। सो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला भी ऐसे ही है जैसे हमने पे बैक पीरियड का किया था। ठीक है, तो हम फॉर्मूला देखते हैं अब। फर्स्ट वन, ARR का फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, जैसा कि हमने अभी थ्योरी पे देखा था, इन 200। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, क्योंकि जो ARR है वो परसेंटेज में निकलती है। ठीक है, जब हमें इक्वल प्रॉफिट्स दिए होते हैं, ठीक है, इक्वल प्रॉफिट्स दिए होते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। एंड दूसरी चीज हमें याद रखनी है, ये जो भी हम एनुअल प्रॉफिट लेंगे ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होगा। ओके, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट वी हैव टू टेक। एंड इन द केस ऑफ अनइक्वल प्रॉफिट्स, when we have unequal profits throughout series of years, then we will calculate ARR as average annual profit upon में average investment into 100. Okay, also there is another method जिससे हम average investment निकाल सकते हैं। average investment कैसे निकलेगी? average investment is half of the initial cost। अब ये इनिशियल कॉस्ट मशीनरी की हो सकती है। सपोज मुझे मशीनरी का प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो मैं उसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे देखूंगी? उसकी इनिशियल कॉस्ट प्लस जो भी उसमें इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस मेरे हुए हैं, ठीक है, माइनस कर दूंगी उसकी सैल्वेज वैल्यू, जो भी उसकी लास्ट में बेचने की वैल्यू आएगी, दैट आई विल सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सैल्वेज वैल्यू अगेन। ठीक है, तो ये होता है हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला।
फिर उसके बाद नेक्स्ट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो एक डिस्काउंटेड टेक्निक है, ठीक है, ये एक डिस्काउंटिंग टेक्निक है इवैल्यूएशन की, which uses time value of money. Okay. So net present value refers to the excess of present value of future cash inflows over and above the original investment. So net present value is present value of cash inflows minus present value of कैश आउटफ्लोज। अब यहाँ पे वी ऑल नो दैट ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, जो भी हमारे कैश फ्लोज होंगे उसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज एज वेल एज आउटफ्लोज। ओके, वैसे नॉर्मली आउटफ्लो की गिवन होती है प्रेजेंट वैल्यू। और डिसीजन रूल यहाँ पे क्या होगा, डिसीजन रूल यहाँ पे ये होगा कि प्रोजेक्ट में तब इन्वेस्ट करूंगी, प्रोजेक्ट में तब एक्सेप्ट करूंगी इफ एनपीवी इज पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जब मुझे इनफ्लो ज्यादा हो रहे होंगे देन आउटफ्लो, ऑब्वियसली मैं तभी एक्सेप्ट करूंगी ना, या फिर तब एक्सेप्ट करूंगी जो आउटफ्लो है और इनफ्लो है वो इक्वल वैल्यू का है। ठीक है, तो अगर एनपीवी मेरा नेगेटिव है, एनपीवी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि मैं पे ज्यादा कर रही हूँ, आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से, तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगी जिसमें मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है और मुझे रिटर्न कम मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। So internal rate of return is that rate of return at which the present value of expected cash flows is exactly equal to the original investment। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि कैश इनफ्लोज किसके इक्वल हो, कैश आउटफ्लोज के। ऐसा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसा कौन सा रेट ऑफ रिटर्न है जिसपे ये कैश इनफ्लो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं कैश आउटफ्लोज के, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं जहां पे हमारा एनपीवी जीरो होता है। ओके, दिस इज द कट ऑफ पॉइंट एट विच द इनकम इक्वल्स द एक्सपेंडिचर। यस, कि हमारे जो भी रिटर्न हो रहा है वो हमारा एक्सपेंडिचर के इक्वल है। सो इन्वेस्टमेंट एक तरीके से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पे है। एट आईआरआर एनपीवी इज जीरो एंड एनपीवी हमें पता ही है क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा। सो आईआरआर भी कैलकुलेट हम इसी तरह से करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉफिटेबिलिटी, नेक्स्ट इज द इवैल्यूएशन ऑफ आईआरआर। सो आईआरआर को अगर हम देखें तो आईआरआर को जनरली हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट कि कितना हमारा मिनिमम रेट हमें रिटर्न का मिलेगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इफ आईआरआर इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन द प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल एंड अदरवाइज प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर ऐसा होता है कि आईआरआर इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो यस वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट वन है, प्रोजेक्ट टू है, इसका आईआरआर का भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, इसका आईआरआर भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो इस केस में मैं कौन सा चूज करूंगी प्रोजेक्ट, इस केस में मैं वो प्रोजेक्ट चूज करूंगी जिसमें आईआरआर ज्यादा हो। ठीक है, जिसका रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो दूसरे वाले से। Last technique of the discounting is the profitability index. Profitability index is the ratio of the present value of cash inflows and the present value of cash outflows. तो ये बिल्कुल एनपीवी की तरह है। एनपीवी में हमने क्या किया था, डिफरेंस किया था बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में मैं क्या करती हूँ, रेशियो देखती हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ओके, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रॉफिटेबिलिटी एट ग्लैंस। एक ग्लैंस में हम देख सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। व्हेन द प्रोजेक्ट्स डिफर इन देयर ड्यूरेशन एंड द कैश फ्लोज these can be compared on the basis of the profitability index। हर प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का आइडिया है, तो प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है। तो प्रोजेक्ट ए सपोज 1 ईयर का है एंड प्रोजेक्ट बी इज फॉर 1 ईयर एंड 3 months।
तो ऐसे जो डिफरेंट ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कैसे कंपेयर करूंगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से। अब यहाँ पे डिसीजन रूल क्या होता है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो 1 से कम है, इफ पी आई इज लेस देन 1, तो मुझे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी मोर देन 1 है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। अब ऐसा क्यों, मतलब कैश इनफ्लो अपॉन में आउटफ्लो अगर मेरा लेस देन 1 है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, अगर लेस देन 1 है ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसका मतलब जो मेरा खर्चा हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है और जो मेरे को रिटर्न मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तभी ये वैल्यू लेस देन 1 आ गई होगी। क्योंकि जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो 1 से छोटी वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे इस केस में हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है तो मैं इस प्रोजेक्ट को क्या कर दूंगी, रिजेक्ट। लेकिन अगर मेरा इनफ्लो और आउटफ्लो का जो कॉम्बिनेशन है उसको डिवाइड करके 1 से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स मेरा डिनोमिनेटर जो है, मतलब मेरा जो खर्चा हो रहा है, मेरे एक्सपेंडिचर्स है वो कम है देन दी मेरा रिटर्न जो मुझे मिल रहा है, जो मेरे कैश फ्लोज आ रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट को मुझे इन्वेस्ट ऐसे प्रोजेक्ट में करना चाहिए। ओके, so that's all for the techniques of evaluation. In the next video we will be discussing the most important numericals of this chapter, and believe me this chapter is very simple. अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इस चैप्टर की तो बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.